Now today we learn one new concept of object-oriented programming, that is function overloading. Function overloading. Now this concept was not there in C, and this is new in C++. Every object-oriented programming language supports this function overloading. Now, what is this function overloading about? Let us see. Function overloading का मतलब क्या होता है कि ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? जब हमने फीचर्स पढ़े थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वी लर्नड अबाउट सर्टेन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एक तो था आपका द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मतलब कि C++ में या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में you create classes, and classes are a collection of data and functions. Instances of a class या variables of a class are known as objects. Then you had a feature called as encapsulation. Encapsulation क्या था? Bundling up or wrapping up of data and functions into a single unit, that is a class, is known as encapsulation. Then एक था आपका abstraction. Abstraction में क्या होता है? Hiding out the details from the user and only focusing on the things that are required to be known by the user. This is known as abstraction. Means जब हम मतलब यूजर को सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए किसी फंक्शन या क्लास के बारे में जितना उसको यूज करने के लिए उसको जरूरत है. जैसे सपोज यू आर यूजिंग द SQRT फंक्शन इन C. तो SQRT फंक्शन यूज करने के लिए अपने प्रोग्राम में या साइन कॉस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं होती है कि साइन कॉस फंक्शन कैसे बनाए गए, उसकी कोडिंग क्या है, या SQRT फंक्शन के अंदर कोड क्या लिखा हुआ है. यू डायरेक्टली यूज दैट फंक्शन, और यूज करने के लिए हमें उसके डिटेल्स में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हम सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि वो फंक्शन का से व्हाट इज द हेडर ऑफ दैट फंक्शन, वो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, what and how many parameters it accepts. Only that we need to know for calling a function. तो ये एक लेवल का एब्स्ट्रैक्शन है. आप यूजर से वो चीजें छुपा रहे हो जो उसको जानने की जरूरत नहीं है, एंड दैट reduces the level of complexity. Because अगर आप हर चीज के डिटेल में चले जाओगे, then things will become complicated. So the user needs to know only that thing which is required by him to use that particular function or class. So that is known as abstraction. Then एक term होता है आपका inheritance. Inheritance में क्या होता है? आप existing classes को use करके you can create new classes, and that leads to reusability of code. इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे. We have a chapter on each of these you can say features separately. So we will be covering all these topics. But फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि what are the characteristics या features of an object oriented programming language. So inheritance leads to reusability of code. Means अगर हमने आज एक क्लास बनाई है, I can reuse that class later on. हो सकता है उस क्लास में थोड़े बहुत चीजें ऐड करके I can recreate a new class. So that means कि हमें हर चीज स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है. पहले से हमारे पास जो चीज बनी हुई रखी है, I can add some new features to it and reuse that existing class to create our new class. So this is the concept of inheritance कि existing classes को use करके आप class create कर सकते हो, and that will reduce your time for say जो भी program लिखने का जो time है, that will be reduced. Then एक आपका feature और है, that is known as overloading. Overloading is also one of the feature of object oriented programming. Now C++ में we will be learning about two types of overloading. One is function overloading, and second is operator overloading.
नाउ फंक्शन मतलब ओवरलोडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ओवरलोडिंग मीन्स, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि आप सपोज इफ एक कोई पर्सन है, से there's an there's a person in an organization, or say he is handling accounts, और अगर आप उसे कोई और एक काम भी असाइन कर देते हो, मे बी एचआर भी असाइन कर देते हो अगर सपोज, तो उस वो क्या कहोगे आप? ओवरलोडिंग कर दिया आपने, मतलब यू हैव टू डिफरेंट टास्क टू अ सेम पर्सन। एक ही पर्सन दो या दो से ज्यादा जब काम करता है तो आप कहोगे आपने ओवरलोड कर दिया उसको, ठीक है? तो वही मीनिंग है यहाँ पे भी। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब कि एक ही फंक्शन से आप अलग अलग तरह के काम करवा रहे हो अलग अलग सिचुएशंस में, दैट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही ऑपरेटर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करे। सो दैट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मींस आप एक ही ऑपरेटर से अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से काम कराते हो, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो तो प्लस ऑपरेटर जो होता है, प्लस ऑपरेटर यूजुअली दो नंबर्स को ऐड करता है। यूजुअली द प्लस ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू नंबर्स एंड दो नंबर्स को ऐड करके वो उनका सम रिटर्न करता है, ठीक है? सो सपोज ए में वैल्यू 10 है एंड बी में वैल्यू 20 है, देन ए प्लस बी में आपका रिजल्ट से 30 आ जाएगा। सो इट एड्स द टू नंबर्स। प्लस ऑपरेटर का मेन काम होता है टू एड द टू नंबर्स। बट कुछ लैंग्वेजेस में plus operator can also work on a string. Now suppose अगर एक string है hello और एक string है से GTBPI, ठीक है? I can add these two strings also by using the plus operator. यहाँ पे ये plus operator क्या करेगा? Now since यहाँ पे दो नंबर्स थे तो उसने उन नंबर्स को ऐड करा, उनका सम निकाला, बट स्ट्रिंग्स का सम नहीं निकाला जा सकता है। तो स्ट्रिंग के केस में whenever you put the plus operator between two strings, then it joins or concatenates the two strings. So the result will be hello GTBPI, मतलब वो दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा और एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है? तो अब यहाँ आप क्या कहोगे? प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोडेड। जब वो इंटीजर्स पे वर्क करता है या नंबर्स पे वर्क करता है तो वो दो नंबर्स का सम निकालता है, और जब वो स्ट्रिंग पे काम करता है तो वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है या कॉन्कैटिनेट करता है। सो इट इज शोइंग टू डिफरेंट बिहेवियर्स इन टू डिफरेंट सिचुएशंस या टू डिफरेंट प्लेसेस। सो दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है? इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, later on we'll be studying about this. So today we'll be studying about function overloading, which is a very useful feature in any object oriented programming language. Now function overloading में क्या होता है? एक ही फंक्शन से आप, एक सिंगल फंक्शन से आप अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग काम कराते हो, या एक फंक्शन अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। दिस इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। और इन मोर सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि एक प्रोग्राम में जब तक सी में जब हम वर्क करते थे, तो सी में जब आप सपोज सी में मैंने एक प्रोग्राम बनाया से void main, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया से फ्लोट एरिया। अब यहाँ पे मैं एक एरिया का फंक्शन बना रही हूँ, एरिया टू फाइंड द एरिया ऑफ अ मे बी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, लेंथ और ब्रेथ। तो हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स लिए, लेंथ एंड ब्रेथ, दो आर्ग्यूमेंट्स लिए, दोनों इंटीजर टाइप है, एंड इट इज रिटर्निंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ हमने फ्लोट लिया है, वी कुड हैव आल्सो टेकन इट एज इंट, क्योंकि से जब हमारा
दोनों पैरामीटर्स लेंथ और ब्रेथ इंटीजर टाइप होंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो एरिया होगा रेक्टेंगल का, दैट विल आल्सो बी इंटीजर बिकॉज द फॉर्मूला इज सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ. अब यहाँ पे हमने से एक इंट ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, और लिखा ए इज इक्वल टू एल इंटू बी. एल आपकी लेंथ है और बी ब्रेथ है ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज टू बी कैलकुलेटेड. ये एरिया आपका कैलकुलेट होके ए में आ गया, एंड फ्रॉम हियर यू कैन रिटर्न द एरिया. सपोज हमने लिखा रिटर्न ए. अब ये रिटर्न होकर के एरिया कहाँ पे जाएगा, जहां भी सपोज यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है. I'll write down the code. यहाँ पे हमने लिया से int से लेंथ कॉमा ब्रेथ कॉमा से ए एरिया. एरिया के लिए ए आर नाम का वेरिएबल ले लिया. अब इसके बाद हमने कहा सी आउट एंटर लेंथ. यूजर से लेंथ इनपुट कराई, सी इन लेंथ. उसके बाद हमने कहा सी आउट एंटर ब्रेथ, फिर सी इन ब्रेथ. देन एरिया कैलकुलेट किया हमने. ए आर इज इक्वल टू एरिया ब्रैकेट में लेंथ कॉमा ब्रेथ. तो एरिया फंक्शन कॉल होगा, एरिया फंक्शन कॉल होगा, एरिया कैलकुलेट होगा और यहाँ से एरिया रिटर्न होकर के ए आर नाम के वेरिएबल में रिटर्न होकर के आ जाएगा. नाउ इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए आर. ए आर नाम के वेरिएबल में आपका एरिया है, तो ए आर को प्रिंट करा दोगे. एंडल देना चाहो आप एंडल दे दोगे. नाउ दिस इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एंड वी हैव रिटन अ फंक्शन नेम्ड एरिया फॉर द सेम. ठीक है, ये सी में भी लिख सकते थे हम, C++ में भी. यहाँ पे मैंने C++ में लिखा. नाउ हैड वी डन द सेम थिंग इन C, तो C में अगर मान लो मैंने एक एरिया नाम का फंक्शन बना दिया है, आई कैन C में एक लिमिटेशन होता है कि एक नाम का एक ही फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर C में आपने एक प्रोग्राम लिखा तो उसमें एरिया नाम का फंक्शन बनाया, तो यू कैन ओनली क्रिएट वन फंक्शन विद द नेम एरिया. You cannot create more than one functions with the same name. But कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उस overloading feature allows you to create more than one functions with the same name, and this concept is known as function overloading. So function overloading में क्या हुआ, creating more than one function with the same name within a program. This is known as function overloading. तो अब C में क्या होता था, जैसे जब आप फंक्शन लिखते हो, whenever there's something known as the signature of a program, how will the compiler know, मतलब जब कॉल होता है फंक्शन तो कैसे कॉल होता है. सपोज यहाँ पे एरिया नाम का फंक्शन कॉल किया, तो कंपाइलर विल सर्च द फंक्शन विद द नेम एरिया एंड रन इट. तो सी में तो एक से ज्यादा फंक्शंस अलाउड ही नहीं थे एक नाम से, तो वहां पे थिंग्स वेर सिंपल. बस वो ढूंढेगा एरिया नाम का फंक्शन कहाँ लिखा है, उसको जा करके रन कर देगा. नाउ फंक्शन ओवरलोडिंग की वजह से या फंक्शन ओवरलोडिंग फीचर in C++ या any object oriented programming language allows you to create a function more than one functions with the same name within a program, within a single program. ठीक है, तो अब suppose
मान लीजिए मेरे को इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ चेंज करना है कि आई वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन C++, उसमें मेरे को एक एरिया नाम का फंक्शन बनाना है, बट उसी एक एरिया फंक्शन, आई वांट टू क्रिएट 3 डिफरेंट फंक्शंस विद द नेम एरिया, उन तीनों फंक्शंस का नाम एरिया होगा, लेकिन एक एरिया फंक्शन आपका सर्कल का एरिया निकालेगा, एक एरिया फंक्शन आपका रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा, और एक एरिया फंक्शन आपका will calculate the area of a triangle. So that means we want to create 3 different functions in a program. तीनों का नाम एरिया रहेगा, लेकिन तीनों फंक्शंस बिहेव अलग अलग करेंगे. नाउ सर्कल का बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला है सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए. आई जस्ट राइट इट हियर. हमें एरिया कैलकुलेट करना है 3 चीजों का एरिया, एक सर्कल का, एक रेक्टेंगल का एंड एक ट्राइंगल का. ठीक है. नाउ सर्कल का एरिया में फॉर्मूला आपका लगता है πr². सो दैट इज 3.14 इंटू r इंटू r. ये फॉर्मूला लगेगा आपका सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए. रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपका एरिया फॉर्मूला लगेगा सिंपली L इंटू b. एंड ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए there are so many different formulas. It depends on the type of triangle जिसका आपको एरिया निकालना है. If it's a right angle triangle then you use half into base into height. अगर आपका scalene triangle है, so we'll assume we'll take a general say formula जो सब पे apply हो जाएगा. So we'll take we'll find the area of a scalene triangle. तो स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपका फॉर्मूला जो यूज होता है, वी यूज द हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर S is equal to A plus B plus C divided by 2. S जो है A plus B plus C divided by 2, also known as the semi perimeter. Perimeter of the triangle क्या होता है? A plus B plus C, लेकिन ये A plus B plus C by 2 है, तो it is also known as the semi perimeter. तो इस फॉर्मूला में S यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है. A, B एंड C आर द 3 साइड्स ऑफ द स्केलिन ट्राइंगल. ठीक है. तो ये मैंने ब्रॉडली सारा लिख दिया कि 3 हमें फंक्शंस बनाने हैं, तीनों का नाम एरिया होगा, तीनों फंक्शंस का नाम एरिया होगा, लेकिन तीनों फंक्शंस अलग अलग शेप्स के एरिया कैलकुलेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं. One area function will calculate the area of a circle, the second will calculate the area of a rectangle, and the third will calculate the area of a triangle. So here we will use the concept of function overloading. ठीक है. Now अब बात आती है कि हम एक ही प्रोग्राम में अगर एक ही नाम से 3 फंक्शन बना देंगे, then how will the compiler know when to call which function? क्योंकि से ये तो एक डाउट क्रिएट हो गया ना. It's like 3 students in a class having the same name. अभी तक हम हर बच्चे को उसका फर्स्ट नेम से मान लीजिए बुलाते थे. Now if we have a case कि we are having 3 students with the same name, तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जब भी हम उस स्टूडेंट को बुलाएंगे या वो स्टूडेंट को बुलाएंगे जिनके 3 लोगों के नाम सेम है, नाउ अ कंफ्यूजन विल अराइज कि एक्चुअली वी आर एड्रेसिंग टू विच पर्सन, क्योंकि 3 लोगों का सेम नाम है. देन इन दैट केस वी हैव टू हैव सम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द पीपल. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ तो फर्क होना चाहिए. अगर उनका फर्स्ट नेम सेम है, मीन्स अगर फंक्शन का नाम सेम है तो ठीक है, उन 3 फंक्शंस में कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे कंपाइलर
डिसाइड कर सके कि किस फंक्शन को कब कॉल करना है. सो लाइक इन केस ऑफ अ स्टूडेंट, अगर मेरे को 3 स्टूडेंट हैं जिनका तीनों का नाम सेम है, तो फर्स्ट नेम सेम होगा, उनका सेकंड नेम डिफरेंट होगा या सरनेम डिफरेंट होगा. सो देन इन दैट पर्टिकुलर, जब भी ऐसा केस होता है जहाँ 3 लोगों के नाम सेम है, तो हमें उनके नाम के अलावा भी कुछ और चेक करना पड़ेगा, मे बी देयर सरनेम, और अगर सरनेम भी सेम होता है देन वी हैव टू चेक देयर रोल नंबर इन ऑर्डर टू एड्रेस देम. तो कुछ ऐसी ही चीज आपका फंक्शन ओवरलोडिंग में कंपाइलर, and I'll just write the example and then I'll show you how the compiler differentiates between the function call. So we'll take the same example. हम 3 area functions बनाएंगे, एक सर्कल का एरिया निकालेगा, एक रेक्टेंगल का और एक से ट्राइंगल का. And we'll keep the name of the function same in all the 3 cases, that is area. Now प्रोग्राम में सबसे पहले सपोज हमने, since this is a C++ प्रोग्राम, हमने iostream.h को इंक्लूड कर लिया. We included the conio.h फाइल. ये क्यों फाइल इंक्लूड करते हैं, you know this. iostream.h में सारे इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड जो भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर डिक्लेयर्ड, एंड conio.h में जो रेगुलरली हमारे फंक्शन यूज होते हैं, get, ch, clr, scr, all these functions are declared in the conio.h फाइल. सो नॉर्मली ये 2 फाइल्स हम हमेशा अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं. नाउ मेन फंक्शन लिखा हमने. नाउ आई एम नॉट इनपुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर बिकॉज दैट विल मेक द प्रोग्राम लेंदी. जब आप लिखोगे इसी प्रोग्राम को, you better input the values from the user, like radius of the circle whose area is to be calculated, length, breadth या size of the triangle, ये सारे आप user से input कराना. मैं अभी फिलहाल के लिए I am just assuming the values. Say int r which is the radius, say is equal to 5, int a is equal to say 3, b is equal to 4, c is equal to 5. ये ट्राइंगल के लिए ले लिए मैंने ए बी सी 3 साइड्स, एंड रेक्टेंगल के लिए हमने ले लिया एल इज इक्वल टू से 10, बी इज इक्वल टू 5. दिस इज फॉर रेक्टेंगल. ठीक है. अब हमने एरिया कैलकुलेट कराया. से वी हैव टेकन सम वेरिएबल, फ्लोट टाइप वेरिएबल ले लेते हैं हम. 3 वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट टाइप. फ्लोट से AR से सर्कल, AR रेक्टेंगल एंड AR ट्राइंगल. ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनमें एरिया हम कैलकुलेट करा के रिटर्न कराएंगे. एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है. नाउ फिर हमने लिखा से AR _circle इज इक्वल टू एरिया. अब फंक्शन का नाम मैंने क्या बताया आपको, फंक्शन का रखने वाले. सो द नेम ऑफ द फंक्शन इन ऑल द 3 केसेस विल बी एरिया. ठीक है. अब अगर सर्कल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी पैरामीटर्स डू आई नीड टू पास टू द फंक्शन टू फाइंड द एरिया ऑफ अ. अब सर्कल के लिए सिर्फ हमें एक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, दैट इज द रेडियस, बिकॉज पाई तो कांस्टेंट है. सो वी जस्ट रिक्वायर द रेडियस ऑफ अ सर्कल टू फाइंड इट्स एरिया. तो हम यहाँ सिर्फ एक पैरामीटर पास करेंगे एंड दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. दैट्स इट. तो एरिया फंक्शन कॉल होगा एंड आर विल बी पास्ड एज द पैरामीटर टू द एरिया फंक्शन. फिर हमने अगले ही लाइन पे लिखा से एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अगेन आई एम कॉलिंग द एरिया फंक्शन, बट दिस टाइम आई एम पासिंग 2 पैरामीटर्स L, B, बिकॉज रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ, जिसके लिए हमने 2 वेरिएबल्स लिए L and B. सो आई विल राइट लाइक दिस. अब आप नोटिस करिए फंक्शन के नाम सेम है. थर्ड हम लिखेंगे एरिया ऑफ से ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब इसका थोड़ा सा लेंदी आपका एक से एक्सप्रेशन हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट वगैरह यूज होगा.
So you can just see that SQRT of इससे पहले आपको पहले s की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज फॉर्मूले में हमारी s की वैल्यू भी यूज होगी. So we will just declare a variable named as maybe s. तो एक फ्लोट टाइप वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं s नाम का, जिसमें हम सेमी पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे. So I'll say s is equal to a plus b plus c whole divided by 2.0. ठीक है, ये 0.0 क्यों लगा रहे हैं? यू ऑलरेडी नो. ओके, हमने C++ में सब में पहले पढ़ा हुआ है. 2.0 क्यों लगा रहे हो आप? टू रिटर्न द रिजल्ट एज फ्लोट टाइप. ठीक है, अदरवाइज इंटीजर डिवीजन विल टेक प्लेस. अब आप लिखोगे AR ऑफ से ट्राइंगल इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. तो ये पूरा, ये आपका आउटर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर रूट का ब्रैकेट है, ये यहाँ क्लोज हो रहा है. ये S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. एरिया कैलकुलेट होगा आपका, सॉरी, दिस वील यूज इन द फंक्शन पार्ट. अभी तो हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन के अंदर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे. यहाँ हम क्या लिखेंगे? एरिया ब्रैकेट में A कॉमा B कॉमा C. मींस एरिया फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं 3 पैरामीटर के साथ. ठीक है, तो अब मेन नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे तीनों फंक्शंस के नाम सेम हैं, जो कि सी में बिल्कुल अलाउड नहीं था. सी में अगर आप ये करने की कोशिश भी करोगे तो वो एक एरर दे देगा कि एक प्रोग्राम में इस नाम का एक नाम का एक ही फंक्शन बन सकता है. सो यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ अ फंक्शन. आपको एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 करोगे या एरिया सर्कल, एरिया रेक्टेंगल ऐसा कुछ करोगे, बट यू कांट कीप द नेम ऑफ द फंक्शंस एज सेम. बट C++ में दिस विल वर्क. नाउ ये तो हो गया, हमने फंक्शंस को कॉल कर लिया. लास्ट में हमने गेट ch लगा, लास्ट में हम इनको एरियाज को प्रिंट भी कराना होगा. सो आई विल प्रिंट इट लाइक सी आउट एरिया ऑफ सर्कल. वो किसमें है? AR_CIR. ठीक है, पूरा सर्कल है, सर्कल लिख लेते हैं. एंड L. Then similarly we will write for area of rectangle. ये है आपका AR_rect नाम के वेरिएबल में एंड L. एंड लास्ट में you will print the area of triangle. AR_triangle एंड L. अब यहाँ पे हमने सारा कुछ, मेन फंक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ आई नीड टू राइट द 3 एरिया फंक्शंस सेपरेटली. ठीक है, यहाँ गेट ch लगा दिया सो दैट you can hold the output screen to view the output. Now this main function is over, and now we'll write the first function, that is your area function for calculating the area of a circle. तो अब आप इसमें क्या करोगे? इसका डिक्लेरेशन कुछ ऐसा होगा, फ्लोट. द आंसर विल ऑब्वियसली बी फ्लोट, क्योंकि जब 3.14 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एरिया कैलकुलेट होके आएगा, इट विल बी अ फ्लोट टाइप. तो फ्लोट, दिस इज द रिटर्न टाइप. एरिया आपका फंक्शन का नाम हो गया, और पैरामीटर जो ये रिसीव कर रहा है दैट इज इंट से r. अब यहाँ पे आपने रिटर्न करा दिया सिंपली. छोटा सा फॉर्मूला है तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे, विल डायरेक्टली रिटर्न द वैल्यू. रिटर्न 3.14 इंटू r इंटू r. ये हो गया आपका एरिया ऑफ अ सर्कल. इसमें सिर्फ एक पैरामीटर पास हुआ, हमने पैरामीटर का नाम सेम ले लिया. तो ये जो r वैल्यू यहाँ से पास होगी वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी
एंड r को 5 अज्यूम करते हुए आपका एरिया कैलकुलेट होगा एंड द एरिया विल बी रिटर्न्ड एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एरिया सर्कल, और वो बाद में आपका प्रिंट करा दोगे आप, एरिया ऑफ द सर्कल इज सो एंड सो। ठीक है, इसी तरह से आप लिखोगे फ्लोट एरिया से इंट l comma int b। now l and b are your formal parameters here, और यहाँ पे l और b आपके एक्चुअल पैरामीटर दिए हैं। यहाँ मैंने एक्चुअल पैरामीटर का नाम और फॉर्मल पैरामीटर का नाम सेम लिया है। you can keep them different if you feel this confusing, but ऐसा कुछ इसमें हार्म है नहीं, so you can keep the name as same। अब यहाँ आप सिंपल क्या, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, तो you will just write return L into B, क्योंकि इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए कोई बड़ा भारी फॉर्मूला नहीं लिखना है, we just have to multiply the length and breadth, so I've directly written it in the return के साथ लिख दिया। अब ये जो रिटर्न होकर के वैल्यू जाएगी ये किस में चली जाएगी, AR_rect में, जो बाद में आप यहाँ पे प्रिंट करा दोगे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज सो एंड सो। नाउ इसी पैटर्न पे बिल्कुल आप लिखोगे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दैट आई विल शो यू लेटर ऑन, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, आई विल हैव टू रिमूव दिस पार्ट। सो मेन कंसेप्ट आप समझ सकते हो यहाँ से, देन आई विल राइट द फंक्शन in the next say page। अब क्वेश्चन ये है कि एक ही नाम से हमने एक फंक्शन यहाँ बना दिया, एक फंक्शन यहाँ बना दिया और एक और फंक्शन बनाएंगे हम, तीनों के नाम सेम है। नाउ सपोज हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, वी हैव रिटन द एरिया फंक्शन फॉर द ट्राइंगल आल्सो। अब जब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे, कंपाइल करके रन करेंगे, अब क्या होगा, प्रोग्राम जब कंपाइल हो जाएगा, अगर ये सी होता, सी लैंग्वेज में आपको ये प्रोग्राम आपका कंपाइल भी नहीं हो पाता, क्योंकि से जैसे ही वो देखता कि एरिया नाम से 3 अलग अलग फंक्शंस आपने बना रखे हैं, इट वुड हैव गिवन यू एरर देयर इटसेल्फ। तो सी में तो ये प्रोग्राम आपका कंपाइल हो ही नहीं पाता, उससे पहले ही वो एरर्स आपको दे देता, बिकॉज सी में इट्स नॉट अलाउड to have 2 or more functions with the same name, because function overloading का जो concept है, that is new to object oriented programming, and only those languages that support object oriented programming allow you to do this। तो C++ में ये फीचर हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपका ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि इसे C++ के कंपाइलर के अकॉर्डिंग फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउड है एंड इस प्रोग्राम में कहीं भी कोई एरर नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ विल द कंपाइलर नो व्हेन टू कॉल विच फंक्शन। जैसे अब सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 बार मैंने एरिया फंक्शन को कॉल कराया, एक यहाँ पे, एक यहाँ कराया और एक यहाँ कराया, 3 जगह हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एरिया फंक्शन को। Now, how will the compiler come to know which function should be called and when? या कौन सा वाला, 3 हमारे पास फंक्शन है, जब सबसे पहले हम सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया फंक्शन को कॉल करा। Now, how many parameter am I passing to this area function? Just 1. सेकेंड वाले एरिया फंक्शन में हमने 2 पैरामीटर पास किए और तीसरे वाले एरिया फंक्शन में आई पास 3 पैरामीटर्स। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो फंक्शन के नाम सेम है, उनका रिटर्न टाइप भी सेम है, लेकिन एक चीज तीनों फंक्शन में फर्क है, एंड दैट इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तीनों एरिया फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग है। एरिया ऑफ सर्कल में सिर्फ एक पैरामीटर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में 2 पैरामीटर्स हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल में 3 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, नाउ हाउ विल नाउ जब फंक्शन हम यहाँ पे सबसे पहले जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं एरिया नाम का, एंड जस्ट पासिंग 1 पैरामीटर व्हाइल कॉलिंग, तो कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो देखेगा
एरिया नाम का फंक्शन पहले ढूंढेगा. नाउ इट विल फाइंड 3 फंक्शंस विद द सेम नेम एरिया. तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट इट विल चेक द नंबर ऑफ पैरामीटर्स. जहां भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स मैचिंग मिल जाएंगे उसे, वो उस फंक्शन को कॉल करेगा. तो इन द फर्स्ट केस जब हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, it will call this function because the number of actual parameter is 1 and here the number of formal parameter is also 1. तो इस बेसिस पे कंपाइलर डिसाइड करता है कौन सा फंक्शन कॉल करना है. सेकेंड केस में आप क्या कर रहे हो, यू आर पासिंग 2 एक्चुअल पैरामीटर्स. तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले तो एरिया नाम का फंक्शन ढूंढेगा. अगर उसे एरिया नाम के कई सारे फंक्शन मिले, then it will match the number of parameters and their types also. ठीक है, तो number of parameter और उसके जो types हैं, they help the compiler in deciding which function to call when. So this is known as ये जो सारी चीजें हैं, जैसे जब आप फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन में जो भी पैरामीटर और उनके टाइप्स पास हो रहे हैं, ये सब मिल करके फंक्शन का एक सिग्नेचर बनाते हैं और हर फंक्शन का सिग्नेचर यूनिक होता है. ठीक है, नाउ रिटर्न टाइप सेम है हमारे सारे फंक्शन, दोनों एरिया फंक्शंस में दोनों का नाम भी सेम है, बट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन बोथ दीज फंक्शंस इज डिफरेंट. तो कुछ तो डिफरेंट है ना दोनों में, तो द सिग्नेचर ऑफ दीज टू फंक्शंस विल बी डिफरेंट एंड this helps the compiler in choosing which function to call या run in which case. So that resolves our जो भी issue था कि confusion कोई नहीं होता है कंपाइलर को. सबसे पहले वो फंक्शन का नाम मैच करता है. अगर कभी उसे लगता है कि एक ही नाम से या दो से ज्यादा फंक्शन है, then it goes to the next level and checks the number of parameters that are passed to the function. अगर नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम हुए इन केस, तो वो उनके टाइप्स को मैच करता है. सब कुछ सेम नहीं हो सकता है. यू कांट हैव 2 एरिया फंक्शंस. नाउ दिस इज वेरी क्लियर. यू कांट हैव 2 फंक्शंस with the same name, with same number of parameters and the same type of parameter. सब कुछ सेम रहेगा तो दोनों फंक्शन का सिग्नेचर सेम बनेगा. and you cannot have 2 functions with the same signature, because अगर ऐसा हुआ तो कंपाइलर को कभी भी compiler will not be able to differentiate between the functions and that will create an issue, that will create an error. Okay, so until and unless function में जो पैरामीटर पास हो रहे हैं उनका नंबर ऑफ पैरामीटर या उनका टाइप डिफरेंट है, तो you can have more than one functions with the same name. So this is the concept of function overloading. So I'll just erase this page and continue with the remaining जो एक और आपका function रह गया है. वैसे तो वो आप लिख सकते हो खुद से भी. So we'll just complete that. That is the area of triangle. तो float area, इसमें आपके int a, int b, int c. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले एक फ्लोट टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, s इज इक्वल s को आप कैलकुलेट करोगे a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2.0. ठीक है, s की वैल्यू निकल आई. अब आप लिखोगे से एक फ्लोट टाइप वेरिएबल आपने ar भी ले लिया जिसमें आप एरिया कैलकुलेट करोगे. आपने लिखा AR इज इक्वल टू SQRT ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. ठीक है, एंड यहाँ लास्ट में आप लिख दोगे रिटर्न रिटर्न AR. नाउ ये भी आपका फंक्शन हो गया. अब जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला एरिया फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि इसे
3 पैरामीटर वहां से पास हो रहे थे, तो यहाँ पे ये फंक्शन को भी 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है. सो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, एंड यहाँ से एरिया कैलकुलेट होके रिटर्न होगा, एंड देयर द आंसर विल बी प्रिंटेड. सो दिस प्रोग्राम is an example of function overloading, and just try out this example. This is the best example for showing the concept of function overloading. एंड एग्जाम में कई बार कभी तो ये प्रोग्राम लिखने को आ सकता है कि, या फिर कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन इट विद अ suitable example. So this is the best example with which you can explain the concept of function overloading. So just try out this example, run the program and see it for yourself. So I'll just end the class here, and now next class में हम classes and objects topic पढ़ेंगे, जिसके notes मैं आपको already भेज चुकी हूँ. Just go through those notes, so it will be easier for you to understand the topic.